Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start new chapter which is related to writing skills. So let's get started bachcho. पैराग्राफ राइटिंग से स्टार्ट करते हैं. अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट शॉर्ट पैसेज डीलिंग विद अ सिंगल थीम एंड स्टार्टिंग अ न्यू लाइन. सो पैराग्राफ में क्या होता है बच्चों, सिंगल थीम पर पैराग्राफ लिखे जाते हैं, देन वो स्टार्टिंग होता है एक न्यू लाइन के साथ हमेशा. While writing a paragraph, remember the following essentials, namely definitions, facts, example, comparison and contrast के साथ यूज किया जाता है. देन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पैराग्राफ में काफी हेल्पफुल होंगे लिखने में. गिवन बिलो आर 4 सिंपल स्टेप्स टू राइट अ पैराग्राफ, जिसमें फर्स्ट दिया गया है द फर्स्ट सेंटेंस गिवन एज इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट, जिसमें चूज एन आइडिया. पैराग्राफ डील्स विद वन आइडिया. द आइडिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगनिंग एंड इज डेवलप्ड थ्रू आउट द पैराग्राफ. देन डिलीट ऑल द इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों, वो आपने कर देना है. लिंक सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग लिंकर्स लाइक एंड, बट, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, एज अ रिजल्ट, दस, एटसेट्रा. नेक्स्ट बच्चों एडिट योर पैसेज करेंगे. द फैक्ट इवेंट्स मस्ट बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस के बेस पर, क्रॉनिकल ऑर्डर के बेस पर, ऑर्डर ऑफ लोकेशंस के बेस पर इनको कंप्लीट करेंगे. देन यहाँ पर दी गई है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है और उन बेस पर यहाँ पर टॉपिक भी आपको दिया गया है. देन यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों फॉर और अगेंस्ट कि फॉर और अगेंस्ट का बेस यहाँ पर क्या दिया गया है. ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लोकेशंस के साथ कंप्लीट करें. तो ये स्टेप्स थे बच्चों जो आप फॉलो करेंगे और साथ में दी गई है बच्चों एक्सरसाइज भी, इसको भी साथ साथ करते रहेंगे. इसमें आपको टॉपिक्स मिले हुए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे जो बच्चों फेवर में भी हो सकते हैं और अगेंस्ट में भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है बच्चों स्टोरी राइटिंग. वी ऑल लव लिसनिंग टू और रीडिंग स्टोरीज. Story writing can be fun too. However, just as any writing task need practice, planning and specific skills, story writing too needs special skills. A good story is sometimes destroyed because it is not told properly. What should we look for in a good story? तो क्या देखते हैं बच्चों एक गुड स्टोरी के अंदर? तो सबसे पहले a good story must have an interesting plot होना चाहिए इसका. The main points events must be arranged in some order. You may follow different techniques for this. And the most common techniques is to narrate the story as it happens. Example, the events are placed in their chronological order of sequence में होना चाहिए. Another way is to use a flashback techniques. Example, a person tries to recall something that happened in the past and relates it to his present से करे बच्चों. The characters must seem real दिखाई देने चाहिए. A story can be made more interesting if some dialogues or pieces of conversations are also introduced in a very natural way. Give the story an interesting conclusion. The whole story must lead to it naturally, and ending which comes as surprise usually makes the stories more interesting. A variety of describing words such as adjectives, phrases or figurative expressions should be used to describe people, places, actions, thoughts or words. These makes a story more readable and interesting. And ensure that your story has a message for its readers. This may be stated explicitly or may be implied. Then बच्चों स्टोरी में कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो भी उसको पढ़े, जो रीडर्स होते हैं, मैसेज वहाँ पर दे वो. नेक्स्ट है बच्चों स्टोरी राइटिंग जब आप करते हो, देन राइटिंग स्टोरी ऑन पिक्चर्स कि किस तरह से पिक्चर्स अगर आपको मिली है उस पर कैसे स्टोरी आप लिख पाएंगे. When writing stories on picture, it is advisable to study the pictures carefully. You may be asked to develop a story on a single picture or on a sequence of pictures के बेस पर दी जा सकती हैं. Try to correlate whatever is depicted, guess what must have happened, what the characters must have thought, said or done के बेस पर fill in all the delays and complete the story so that it makes sense and has a message for its readers. तो यहाँ पर मैसेज भी वो दे दें बच्चों. एक्सरसाइज में दे रहे हो आप यहाँ पर कि पिक्चर्स के बेस पर स्टोरी लिखना भी सीखेंगे. राइटिंग स्टोरीज ऑन गिवन आउटलाइंस बच्चों. कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज ऑन गिवन आउटलाइंस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू राइटिंग स्टोरीज ऑन अ सेट ऑफ पिक्चर्स इन फॉर्म एंड स्टाइल के बेस पर. द ओनली डिफरेंसेस इज दैट इन दिस केस इनपुट्स आर वर्बल्स एंड नॉट विजुअल्स. While writing a story on a given outlines has no connects ideas in a natural way using the hints. The outline serves as a skeleton and you are required to flesh it with details. तो उसमें आपने बताना है डिटेल्स के साथ बच्चों. देन एक्सरसाइज भी साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे बच्चों. लेटर राइटिंग के अंदर भी बच्चों लेटर्स आपका फॉर्मेट क्या होता है, देन फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर. तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि किस तरह से आप लेटर्स को राइट डाउन कर सकते हैं.
देन यहाँ पर एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट भी करते रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट आपको टॉपिक मिला है बच्चों, वो है डायरी एंट्री का। अ डायरी एंट्री इज अ शॉर्ट कंपोजिशन, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द राइटर्स फीलिंग, थॉट्स, एक्सपीरियंस, रिएक्शंस और एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पर्टिकुलर डे। देन बच्चों डायरी एंट्री के अंदर एक शॉर्ट कंपोजिशन आपको लिखना होता है, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स, थॉट, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हो, रिएक्शंस या एक्टिविटीज भी इसमें शेयर कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डे से जो रिलेटेड होती है। फॉर्मेट ऑफ ए डायरी एंट्री क्या होता है बच्चों? सबसे पहले अ डायरी एंट्री मस्ट बिगिन विद द डेट, द डे एंड द टाइम शुड बी मेंशन नेक्स्ट एंड साइन एट द एंड। बच्चों तो हमेशा याद रखेंगे फॉर्मेट में आपको डायरी एंट्री में वो स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी? डेट के साथ, डे के साथ एंड टाइम के साथ, और लास्ट में अपने साइन भी वहां पर कर देंगे। देन यहाँ पर बच्चों दिए गए हैं डायरी एंट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक भी, वो भी कंप्लीट करेंगे। नोटिस क्या होता है बच्चों? A notice is a short piece of information about a particular program or event generally put on school bulletin board, in offices or newspaper. देन बच्चों जो नोटिस होता है ना वो शॉर्ट पीस होता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड। स्कूल में हो सकता है वो प्रोग्राम, या फिर बुलेटिन बोर्ड पे लगाया जाता है, ऑफिसेज में भी लगा सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में भी वो दे सकते हैं हम। देन बच्चों नोटिस से रिलेटेड भी आपको टॉपिक दिए गए हैं, वो भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आर्टिकल्स क्या होते हैं। रिमेंबर दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल्स। जब आर्टिकल्स लिखते हैं तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। द ओपनिंग पैराग्राफ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन मस्ट हैव अ कैची टाइटल। सबसे पहले कैची टाइटल होना चाहिए। देन टेल व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, कैच अटेंशन, अराउज इंटरेस्ट, लिमिट एंड कंट्रोल व्हाट यू प्लान टू डिस्कस इन योर आर्टिकल, ये भी बताना है। और ये बी क्लियर होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए बच्चों। डेवलप योर व्यूज ऑन द टॉपिक बाय यूजिंग फैक्ट्स, गिविंग एग्जांपल टू सपोर्ट योर व्यूज। देन थर्ड रहेगा बच्चों पॉइंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड। देन इंक्लूड व्यूज कॉन्ट्रारी टू योर्स, कंपेयर व्हाई योर व्यूज आर बेटर। एंड नेक्स्ट में बच्चों लास्ट में आपने कंक्लूजन ऐड करना है, जिसमें व्हाइल समिंग अप रीस्टेट योर व्यूज, डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स, रिमेंबर don't attempt to write about every single piece of information, select only relevant information। जो बच्चों relevant information है वो ही यहाँ पर डालनी होती है आपको। देन बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज भी साथ साथ दी गई है, वो भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्पीच राइटिंग क्या होती है। डू यू नो that there is an alarming increase in the number of patients. Most of them are children suffering from respiratory disorders. Air pollution caused by vehicles is mainly to blame for this ailment. Drive at a steady speed within the recommended speed range. And second, always drive in correct gear. Check the tire pressures, keep the engine turned. Switch off your engine if you have to stop your vehicles for more than 2 or 3 minutes. Use multi-grade engine oil. PCRA, The Hindustan Times, July 15. Please follow the Petroleum Conservation Research Association's PCRA tips for oil conservation and save your future. Think of all the causes including the tips given below for the increase in air pollution बच्चों। तो इसी बेस पर एक्सरसाइज भी दी गई है बच्चों, वो भी साथ साथ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम कंप्लीट करने वाले हैं जो है डिबेट से रिलेटेड। इन अ डिबेट देयर आर ऑलवेज टू स्पीकर्स और टर्म्स, वन स्पीकिंग फॉर द मोशंस एंड अदर स्पीकिंग अगेंस्ट इट, फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। बच्चों इसमें दो टीम होती है, वो डिबेट करती है, एक फेवर में होती है और एक अगेंस्ट में होती है। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं बच्चों आपको? फॉर्म टू टीम्स, वन टीम टू स्पीक फॉर द मोशन एंड द अदर टू स्पीक अगेंस्ट इट। एक मोशन में रहेगी फेवर में और एक अगेंस्ट में बच्चों। सेलेक्ट ए स्पीकर टू रिप्रेजेंट योर ग्रुप इन अ डिबेट, देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शुड हेल्प देयर रिप्रेजेंटेटिव टू प्रिपेयर हिज हर आर्गुमेंट। ईच स्पीकर विल गेट 3 minutes. Appoint timekeepers, chairpersons, conduct the debate. Keep these points in mind when you speak. When you begin, you could say, first, Mr. Chairperson or Mrs. Chairperson, respected teachers and my friends, mention clearly whether you are speaking or for or against the motion. You could use the following expressions, जिसमें गिविंग रीजन अगर आपको देना है, गिविंग एग्जाम्पल देना है, या फिर समिंग अप देना है बच्चों। तो आप क्या क्या वर्ड यूज करेंगे गिविंग रीजन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, देन, नेक्स्ट, फाइनली, वी मस्ट नॉट फॉरगेट। एंड गिविंग एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। समिंग अप के लिए, टू सम अप, दैट्स व्हाई आई फील। Make sure you know what your opinion is and what reasons you can give for it. Give reasons why you agree, disagree with the other speaker. Then बच्चों reacting के लिए फिर expressing करना है, I think, I feel, in my opinion. Then agreeing के लिए, I agree with you, that's true. Then disagreeing कर रहे हैं तो sorry, I don't agree with you, that's not right, I don't think you can say. Then बच्चों bridging के लिए आप क्या यूज करेंगे?
फ्रॉम ओपिनियन टू रीजन, लेट मी एक्सप्लेन माई पॉइंट, देन समिंग अप, गिविंग रीजंस के लिए योर ओपिनियन, सो टू सम अप आई वुड से दैट्स व्हाई, गिविंग रीजन के लिए फैक्ट्स और एग्जांपल्स, वेल यू सी फर्स्ट सेकंड एंड देन वी मस्ट रिमेंबर, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इस तरह से करना है आपको कंप्लीट। रिमेंबर टू इंक्लूड फ्रेजेस जिसमें आई स्ट्रांगली अपोज द मोशन, आई सपोर्ट द मोशंस होल हार्टेडली, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई माय वर्दी अपोनेंट फेल्स, I'd like to present my views, I fully agree with the views expressed by, I reject, I totally disagree with the view, I submit, I'm amazed at the views expressed by, I condemn, I'd like to draw the attention of the members of the jury and my friends, may I ask my worthy opponents। देन बच्चों इसी बेस पर एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज एन ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक इन डिटेल एंड ऑब्जेक्टिव इन स्टाइल के बेस पर। While writing the report, remember a newspaper report deals with who, what, where, why, how के बेस पर। The headline must be catchy and brief होनी चाहिए बच्चों। Leave out articles, preposition, etc. whether possible. Mention the place and date करेंगे। A newspaper report contains, न्यूज़पेपर में क्या क्या जरूरी होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले the nature of the incident, time and place of occurrence, details of the event, eyewitness accounts, follow up action where needed। Then language of the report क्या रहेगी बच्चों, simple, lucid but formal language। यूज ऑफ सर्टेन एब्रीविएशंस का यूज करना है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, डिटेल्स फॉलो। आर न्यू स्टोरीज मस्ट हैव अ फोकस अ पर्सन इफ ही इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट। देन थर्ड है बच्चों राइट एन न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग। देन यहाँ पर दी गई एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जिस पर लिखनी है। देन तानिया माथुर अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विटनेस्ड अ touchdown of a spacecraft carrying some space tourists. She jotted down some points, used them to write a short report on the event. Then third desert, 14 September, 4 p.m. First successful attempt. Tourists, 4 Indians, 3 Americans, 1 Chinese and 4 crew members. Arrangements, ambulances, doctors and firefighters. Spectators, 20 p.m. Scientists, army, reporters, TV crew. देन इनके बेस पर बच्चों एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग इज एन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू प्रमोट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जब प्रोडक्ट को सेल करना होता है, प्रमोट करना होता है, उसके लिए यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट हैव टू बी रेलेवेंट टू कंज्यूमर नीड्स। अ गुड एडवर्टाइजमेंट शुड बी ओरिजिनल, कैची, शुड अवोक द पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए यूज की जाती है। वी यूजुअली कम अक्रॉस टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, जिसमें क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड में बेस पर होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की। These are inserted in columns in newspapers and appear under specific headlines. Some of the common headings for classified advertisements are to let, sale, purchase, then situation vacant के लिए, एडुकेशनल, मैट्रिमोनियल और प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं बच्चों ये। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के लिए फीचर्स हैं बच्चों। फर्स्ट, दे आर ब्रीफ, ऑफन नोट एक्सीडिंग 50 words because advertisers have to pay for the numbers of words and space they use। बच्चों वो नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए चार्ज करते हैं, इसलिए वो कितना होना चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं करना है एक्सीड। द हेडिंग ऑफ द कॉलम अंडर द विद इन द एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी गिवन शुड बी रिटन क्लियरली एंड करेक्टली। रीडर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स सर्च फॉर एडवर्टाइजमेंट्स बाय हेडिंग्स and usually only the content words, the words that carry information are used to write the advertisement. Complete sentence are avoided and only phrases are used. Advertisements therefore may not be grammatically correct. Normally conjunction, auxiliary verbs, preposition etc. are replaced by comma, semicolons and dashes. Advertisement should focus on how to catch the reader's attention. Advertisers usually think and design the advertisement from the reader's points of view के बेस पर देखते हैं। The contact address and phone number should be given. Then बच्चों एडवर्टाइजमेंट के लिए वो कैची हेडलाइन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो फोटो वहाँ पर आप लिख सकते हो। देन इतना तरीके से बच्चों सभी चीज़ें, ताकि वो जो रीडर्स पढ़ने वाले हैं वो अटेंशन ग्रैब कर पाए, उसी बेस पर बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फीचर्स ऑफ नॉन क्लासिफाइड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है बच्चों द पर्पस ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट इज टू गिव पब्लिसिटी टू अ सब्जेक्ट और अ प्रोडक्ट के लिए पब्लिसिटी करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है बच्चों यहाँ पर दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट और फॉर प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस।
Non-classified advertisements are not placed in columns or under heading. They are inserted in certain spaces especially allotted in the newspaper. Then fourth point रहेगा बच्चों, they are often quite large and cost of the advertises a huge amount of money. They are eye-catching and mostly colorful. They also use language very creative along with visuals to draw the reader's attention. Non-classified advertisements aim at the convincing the readers of something. They influence and readers thinking and attitude. तो ये बच्चों काफ़ी मेन पॉइंट थे जो थे यहाँ पर नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तो ये याद रखेंगे और इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों पोस्टर मेकिंग. A poster has no fixed format. However, from the examination point of view, a poster must incorporate all the following points. तो पोस्टर के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे बच्चों? पोस्टर के अंदर थीम, टॉपिक और इवेंट होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट. पर्पस एंड और ओकेजन, डेट, टाइम एंड प्लेस इन केस ऑफ एन इवेंट में मेंशन करना है बच्चों. पोस्टर मेकिंग में बच्चों यहाँ पे स्पाइसमैन भी दिए गए हैं, सेव फ्यूल, वॉक और स्टाइल के ऊपर. लाइक आपने देख पा रहे हो बच्चों, वेलकम पेरेंट्स एंड इस तरह से आप कंप्लीट कर पाएंगे. तो ऐसे ही बच्चों और भी स्पाइसमैन आपको दिए गए हैं, इनको भी आप चेक करेंगे और इसकी हेल्प से अपने आप भी बनाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रिसाइज समरी राइटिंग से रिलेटेड. तो समरी देख लेते हैं बच्चों. अ समरी और अ प्रिसाइज इज एन abridgment or the gist of a given passage written in a clear and a concise form. A practice of writing is a summary enables the students to grasp ideas quickly and precisely while using only the essentials and not wasting time on unnecessary details के लिए यूज किया जाता है. A summary should contain all the important facts. summary में बच्चों सारे important facts काउंट किए जाते हैं. It should not generally exceed 1/3 of the original passage. The language should be simple and the idea should, as far as possible, follow the same sequence as in the given passage. It is usually written in the past tense, third person and indirect speech. Unless the content of the passage requires it to be otherwise, a title must be provided even if it is not asked for. The method of the writing a summary is as follows बच्चों दिए गए हैं. Read the original passage thoroughly to understand what it is about. Then second point है बच्चों, think of a title indicating the topic. Read the passage again slowly and carefully. Underline the important points आपको करने हैं बच्चों. Make brief notes on these points. Write a logical and grammatically summary on these notes without referring to the original. Then बच्चों इसके बेस पर एक्सरसाइज भी दी गई है जो आप समराइज करेंगे इस पैसेज से रिलेटेड. तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है बच्चों. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, देन समझते हुए चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों.